Hello, hi, namaste, salama. Welcome to Anuj Kumar IND, and it's time to start a new topic. It's an algebraic part of mathematics, and its name is permutation and combination, right? So, one more thing I want to tell you that the notes of this lecture will be provided in the description of the video, right? So, you can check before watching the video that what all topics are covered in this video, right? So, you can access from the description, right? So today's topic is permutation and combination. So before starting, please like, share and subscribe the channel. Okay, so moving forward with a beautiful chapter of permutation and combination. So so uh, how does permutation help us? So basically it helps us count. It helps us to count, right? By There are certain techniques of counting, certain techniques of counting of counting, right? So with the help of these certain techniques, it helps us to count, and it's really interesting, right? So basically we'll be dealing with some of the fundas in the local language. So I'll be telling you certain fundas, which will making this chapter more easier. And the chapter is, it is standing on that fundas only, right? The pillars of the chapter basically. So let's move forward with the fundamental principle of counting, right? So we will name it as F1. F1 fundamental principle of counting. Understand? In this, we basically deal with when to add and when to multiply. When to multiply. So let's understand this with a very basic example. Suppose mm, suppose you have four trousers or four shirts and three trousers. आपके पास चार शर्ट हैं और तीन ट्राउजर्स हैं, ओके? तो आप कितने वेज में अपने आप को ड्रेस कर सकते हैं इन कपड़ों से? In how many ways you can dress yourself in these clothes? So many of you will give the answer that it's very simple. We can dress in 4 into 3, 12 ways. 12 ways. So who don't understand, let me understand with you the set formula, the set concept. Suppose I am making this, okay? This is the set of shirt, and let me draw it again. We have to make in the oval shape, right? And this is the set of trousers, and I'm writing here the numbering of shirt is as follows: S1, S2, S3 and S4, and trousers is T1, T2, T3. Understand? So as you can see that my first shirt can be paired with first trouser, second I can wear it with second trouser, I can wear it with third trouser too. Now, similarly, my second shirt can be paired with first trouser, second trouser and then third trouser, right? And similarly, my third shirt can be paired with first trouser, second trouser, third trouser, and similarly the fourth also. So you can see that one shirt can pair my one shirt can pair with three trousers. So my fourth shirt
will be paired with 3 trousers, then the product will be 12. So there are 12 ways in which I can dress myself with 4 shirts and 3 trousers. Okay, it's pretty simple. Now, you may have doubt that when we have to multiply and when we have to add, right? So write the heading, write it like this. If two answers represent cases, options, or else in Hindi, या तो, either or, something like this, either or, then they are added. Then they are added. Understand? So, like I have given you the example of this. So, अब यहाँ पे आप देखो कि हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि या तो वो शर्ट पहन लेगा या तो ट्राउज़र। अब उसको मान लो मार्केट जाना है, तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे या तो शर्ट पहन लेगा या तो ट्राउज़र पहन लेगा। वो सलमान खान तो है नहीं, उसको अपनी बॉडी दिखानी है, या वो मोगली बन के तो जाएगा नहीं। तो वो या तो शर्ट पहनेगा या तो पैंट पहनेगा, ऐसा तो उसका सिस्टम नहीं हो सकता। वो पहनेगा तो दोनों पहनेगा, तो दोनों पहनेगा तो हमने मल्टीप्लाई किया, राइट? सो उसको हम कैसे लिखेंगे? इफ़ टू आंसर्स represent stages, raw matter, raw material, और in Hindi, or फिर, to basically for understanding you can use Hindi also. Like I'll be using and I'll be showing you how to understand with it together. And then they are multiplied. राइट अब जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का केस बताया, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, वो शर्ट और पैंट को साथ में पहनेगा, वो शर्ट और पैंट पहनेगा, एंड इन हिंदी और, राइट? वो शर्ट और फिर पैंट पहनेगा। उसका सिस्टम ये नहीं है कि वो शर्ट या तो पैंट पहनेगा, तो हम उसको ऐड नहीं, सब मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो शर्ट और फिर पैंट पहनेगा, वो शर्ट और पैंट साथ में पहनेगा, तभी वो साथ उसको शर्ट पैंट के उसको पेयर को साथ बना के वो घर से बाहर निकलेगा ना। वो शर्ट या तो पैंट नहीं पहनेगा, नहीं तो कुछ से कुछ हो जाएगा। वो शर्ट और पैंट पहनेगा, इसीलिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अंडरस्टैंड? इसको और अच्छे से एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी हैव 10 boys and 10 girls, ओके? एंड इसमें मैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज को मैं पहले वही लिख देता हूँ, यहाँ स्टार्टिंग में लिख देता हूँ। मैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज को FTNOW लिखूँगा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, राइट? So we have 10 boys and 10 girls. Find the number of ways in which one boy can marry one girl. And A part,
and the B part is find the number of ways to pick a person. To pick a person. Now, A part. See, एक लड़का को एक लड़की से शादी करनी है, अंडरस्टैंड। अब इसमें ऐसा तो नहीं है या तो लड़का शादी करेगा या तो लड़की शादी करेगी, लड़का लड़का शादी तो कर नहीं सकते। वैसे आजकल हो तो कुछ भी सकता है, पर लॉजिकली लड़का और लड़की भी शादी करेंगे। तो इसमें ये तो नहीं है या तो लड़का शादी करेगा या तो लड़की शादी करेगा, या इसमें ऑप्शन तो नहीं है। इसमें क्या है, इसमें लड़का लड़की साथ में शादी करेंगे, राइट। लड़का और लड़की शादी करेंगे, अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 10 इंटू 10 100। तो हमारे पास 100 वेज हैं लड़का और लड़की की शादी करवाने के लिए। जैसे यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सिमिलरली हमारे पास 10 लड़के, और यहाँ पे आगे हमारे पास 10 लड़कियाँ, ठीक है। तो ये लड़का इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, इससे 10 ऑप्शंस, इसके पास 10 ऑप्शंस, थर्ड के पास 10 ऑप्शंस, फोर्थ के पास 10 ऑप्शंस, फिफ्थ के पास, ऐसे करके 10 के पास 10 ऑप्शंस है। तो 10 इंटू 10 100 हो गया, अंडरस्टैंड। ये इसको थोड़ा लॉजिकल पार्ट, अगर आपको ऐसे वर्डिंग में समझ नहीं आता है तो। अब बी पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पिक अप पर्सन। अब देखो, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ टू पिक अ पर्सन। हम या तो लड़का को पिक कर लेंगे या तो हम लड़की को पिक कर लेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शंस है। वी कैन, ये देखो ऑप्शंस, वी कैन पिक अ गर्ल और अ बॉय। या तो भी यूज हो रहा है, ईदर अ गर्ल ईदर अ बॉय। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि वी हैव 10 + 10 20। अच्छा, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसको पहचानने का। अब देखो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर हम एक हिस्से को, अगर हम मान लो हम फेंक देते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है। जैसे मान लो हमारे पास 10 बॉयज़ और 10 गर्ल्स हैं, मान लो हमने 10 बॉयज़ को एक मिनट के लिए साइड कर दिया और सिर्फ 10 गर्ल्स रखा, तो पर्सन तो पिक होगा ना। इसमें कहीं वो तो पंगा नहीं है इसमें कि पर्सन पिक नहीं हो रहा है, कि पर्सन हो ही नहीं सकता पिक। बॉयज़ को साइड करने पे पर्सन पिक हो रहा है, यानी काम चल रहा है। लेकिन अगर मैं लड़का हटा दूंगा ए पार्ट में, अगर मैं एक लड़का ही हटा दूंगा, तो फिर लड़की फिर शादी कैसे होगी। अगर लड़का ही हट गया तो लड़की की शादी किससे होगी, तो मतलब उसमें काम नहीं चलेगा। तो बेसिकली जिसमें काम चल सकता है उसमें एडिशन होगा, जिसमें काम नहीं चल सकता है उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। अब सपोज मेरे पास 4 टाइप्स ऑफ चाय पत्ती है और 2 तरह का दूध है, एक बफेलो का और एक काव का। अब अगर मैं चाय पत्ती को उठा के फेंक दिया मैंने, तो मेरी चाय तो नहीं बन सकती है, दूध खाली गर्म हो सकता है, वो चाय तो नहीं बन सकती है। इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू 2 8, 8 वेज ऑफ मेकिंग अ टी, अंडरस्टैंड। या अगर मैं मिल्क को साइड कर दूंगा तो भी उसमें चाय नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए जिसमें काम चलेगा उसमें एडिशन, जिसमें काम नहीं चलेगा उसमें मल्टीप्लिकेशन। मूविंग फॉरवर्ड, ऐसी पीएनसी पढ़ा दूंगा, आज तक पढ़ाई नहीं होगी किसी ने। अब सपोज ये है एक स्टेट ए और ये है एक स्टेट बी, ये है एक स्टेट सी, 3 स्टेट्स, अंडरस्टैंड। मेरे पास ए से बी जाने के 4 वेज हैं। चार वेज है मेरे पास ए से बी जाने के, और बी से सी जाने के 5 वेज हैं। नो प्रॉब्लम, ए से बी जाने के 4 वेज और बी से सी जाने के 5 वेज। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways a part, a person
go from A to C. B part. A person arrive at B from either A or C. C part. A person can go from A to C or C to A, and the last one is the a person can go from A to C then back to A. करो, pause the video and start doing, and I'll be doing the solution. So A part में देखते हैं. A person going from A to C. तो देखो उसके पास A से B जाने के 4 वेज हैं और B से C जाने के 5 वेज हैं, और इसके पास ऑप्शंस नहीं है कि ये A से B नहीं जाएगा, डायरेक्ट A से C जाएगा. उसको A से B जाना ही होगा, उसके बाद वो A से B से C जाएगा, तभी उसका रूट A से C के लिए कंप्लीट होगा. तो बेसिकली वी हैव स्टेजेस. और लेके आना उठाइए और समझ नहीं सकती. अंडरस्टैंड? उसके पास ऑप्शंस नहीं है. जैसे कि हमने यहाँ देखा था, ऐड होने के लिए ऑप्शन चाहिए, केसेस चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टेजेस हैं. उसको पहला स्टेज उसको पार करना है ए से बी का, उसके बाद उसका दूसरा स्टेज है बी से सी का. तो इन टोटल यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे आएगा 4 × 5 20. बी पार्ट. अ पर्सन अराइव एट बी. अ पर्सन, यहाँ पे क्या आना आएगा? अ पर्सन कैन अराइव एट बी. यहाँ उसको बी पे आना है. फ्रॉम ईदर ए और सी. या तो वो ए से आएगा या तो वो सी से आएगा. अंडरस्टैंड? उसके पास अब ऑप्शंस आ गए हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? एडिशन. सी पार्ट. अ पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू सी. ओके, कैन गो फ्रॉम ए टू सी, नो प्रॉब्लम. और सी टू ए. या तो वो ए से सी आए या तो वो सी से ए जाए. तो हमको पता है कि ए से सी जाने का कितना है? 5 × 4. और या तो उसके पास ऑप्शन है, जाए ना जाए उसकी मर्जी. या अगर या तो ए से सी जाए, उसका मूड बदल गया तो सी से ए जाए. तो यहाँ पे क्या होगा? एडिशन. कितना आ जाएगा? 40. डी पार्ट. अ पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू सी देन बैक टू ए. अब उसको ए टू सी जाना है और सी से ए आना है, कंपल्शन हो गया. अब ये इसका ऑप्शन नहीं है, आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब उसको आना है. अब ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो ए से सी फिर सी से ए. तो अब ऑप्शन नहीं रह गया है, स्टेज आ गया है. तो मतलब ए से सी जाने का 20 और सी से ए आने का 20. तो 20 20 400 इज द आंसर. अंडरस्टैंड? एनी डाउट प्लीज drop it in the comment section. So moving forward, funda number 2. There are 3 primary techniques. Now I have shared here that we have the counting is possible due to techniques of counting. So let's see the techniques of counting. The techniques have came up. So let's move to funda number 2. Techniques. There are 3 primary techniques. There are 3 primary techniques.
लिखते चलिए. So the first one is selection technique. Selection technique. Second one, or else I should write in this way. Second one is the shuffling technique. And the last one is the distribution technique. Distribution technique. Okay, the distribution technique. So when we talk about selection technique, so it basically involves choosing and picking. So you have to select. So basically you have to choose. अब मान लीजिए एक ट्रिप जा रहा है, आपके स्कूल से एक ट्रिप जा रहा है जिसमें 10 बच्चे हैं, उसमें से 2 को मॉनिटर चूज करना है, 2 को मॉनिटर चूज करना है या फिर 2 को मॉनिटर पिक करना है. Understand? Okay. Now shuffling. Shuffling is done when we talk about arrangement. When we talk about arrangement. And when distribution is done, basically when we जब बांटने वाला काम आ गया, बांटना. Right. So let me give an example. Suppose I have a box. Some people have doubt in shuffling and distribution. And suppose I have orangish and reddish ball. Then I have a blue ball and a gray ball. And now it is distributed. And when I am doing like this, the gray ball comes here, the blue one comes here, and the red one comes here. So this is the shuffling. This is the shuffling. So we'll talk in detail when we will go in order wise. First selection, then shuffling, then distribution. So let's start with the funda number 3, that is the shuffling, the selection technique. The selection technique. Okay. Now I'm writing one formula here. Don't get panic. NCR is equals to n factorial divided by r factorial multiplied by n minus r factorial. हेलो, ठीक हूँ दीदी, प्रणाम. ठीक हूँ दीदी, आप? कुछ नहीं. So I am writing a formula here, that is NCR is equals to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Okay. So what is this? What is NCR? So basically factorial is 1 factorial is equals to 1, 2 factorial is equals to 1 into 2, 3 factorial is equals to 1 into 2 into 3. So basically what is factorial? The number written here, right? Suppose here it is written 4, so 1 into 2 into 3 into 4. So the number written here, so we have to multiply the number starting from 1 to the number which is written
before the factorial. Okay, hope you understood. So now let's understand what is NCR is equals to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. So the number of ways to select r distinct objects out of n out of n distinct objects for a specific non-repeated purpose is NCR. Okay, that's pretty simple. That's really pretty simple. So मुझे जहाँ तक लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि it is a type of way in which we select r distinct objects. So basically I am selecting, suppose this is a space in which I am selecting this particular space only, this particular space. So out of n I am selecting r, right? So if I okay, so this is pretty simple, but the one thing which you might be confused is the specific non-repeated purpose is NCR. So let's understand it. So let's start with the question. This is a understanding question, so which you'll be understanding. Consider A, B, C, D, E, F, G. Consider A, B, C, D, E, F, G are 7 players. So find the number of ways, A part, to pick 4 of them. Find the number of ways to pick 4 of them. A part is pick 4 of them. Then to pick 4 of them such that A is not selected. B part, C part, pick 4 of them such that either A is selected and B is rejected. D part, pick 4 of them such that A is selected and A is rejected and B is selected. Oh, there's a minor change here. A is selected and here it is A is selected and B is rejected. Or
B is selected and A is rejected. No problem. So let's start the solution. So pick 4 of them. So pick 4. So we have the total options of 7. Out of 7 we have to pick 4. So 7C4 is the first part. B part is the pick 4 of them such that A is not selected. So basically we were having A, B, C, D, E, F, G. We are having 7 in which A is not selected. That means A तो पहले से ही जाओ यहाँ से. A is not selected and the remaining are 7. The remaining are 6. Sorry, remaining are 6. So out of 6 we have to select 4. Out of 6 we have to select 4. So the answer will be 6C4. Understand? C part. Pick 4 of them such that either A, either not. Here it will come A is selected. A is selected and here it will come either. Such that either A. Okay. So in the C part, either A is selected. The C part is pick up 4 such that A is selected. So if I write A, B, so let me tell you the solution. One more method for B part, right? So can it be the total number, the total ways minus wrong ways? Minus wrong ways. रॉन्ग वेज का मतलब, अब इसमें रॉन्ग क्या होगा, हमें ए नहीं लेना लेकिन हम रॉन्ग में लिखेंगे ए पक्का लिया है, ये इसका गलत हो जाएगा. तो टोटल वेज हमारे पास कितने हैं 7C4. अब अगर ए ले लिया है तो 6 बच गए, ए ले लिया है तो 6 बच गए. और अब ए ले लिया है तो मतलब 1 ले लिया है, जगह 4 की है तो अब 3 ही लेने हैं. तो माइनस रॉन्ग वेज कितने हैं सी 6C3. अब इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा और इसका जो सोल्यूशन होगा, दोनों के दोनों सेम आएंगे, दोनों के दोनों सेम आएंगे. तो एक ये मेथड है, एक ये मेथड है. यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज M2 एंड दिस इज M1. ओके, कि मेरे पास टोटल वेज थे इतने, उसमें से मैंने गलत मेथड हटा दिया तो मेरे पास कितना सही बच गया. ठीक है, अंडरस्टैंड. सी पार्ट. पिक 4 ऑफ देम सच दैट ए इज श्योरली सिलेक्टेड. सो मेरे पास अगर ए बी सी डी ई एफ जी, तो मेरे पास ए श्योरली अंदर आ चुका है. तो मुझे अब 3 लेने हैं 6 में से, तो इसका आंसर आ जाएगा 6C3. अंडरस्टैंड. डी पार्ट. डी पार्ट इज लिटिल बिट ट्रिकी. Pick 4 of them such that either A is selected and B is rejected or B is selected and A is rejected. So basically इसमें कहा है कि या तो A अंदर आएगा और B बाहर जाएगा, दिस इज केस 1, और A बाहर जाएगा और B अंदर आएगा टीम के, दिस इज केस 2. सो मेरे पास, सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन. मेरे पास टोटल है A B C
D E F G। अब देखो मेरे पास ए टीम के अंदर आ चुका है और बी को निकाल देना है। अब मेरे पास 3 की और जगह बची, 4 हैं, 4 टोटल लेने में ए आ चुका है और बी निकल चुका है। तो मतलब मेरे 2 तो ऐसे ही हट चुके हैं, मेरे पास रिमेनिंग कितने हैं, 5। तो आउट ऑफ 5 आई हैव टू चूज 3। अंडरस्टैंड? आउट ऑफ 5 आई हैव टू चूज 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 5C3। सिमिलरली केस 2 के लिए मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ जी। तो मेरे पास ए जा चुका है और बी टीम के अंदर आ चुका है, राइट। इसमें भी क्या हो जाएगा, 5C3। आसान है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक क्वेश्चन के द्वारा इस स्टेटमेंट का ये वाला पार्ट, स्पेसिफिक नॉन रिपीटेड पर्पस। आइए तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 letters out of A B C D E F G। B part A A A A A A A। C part A A A B B C D। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास 7 ऑप्शंस हैं और 7 में से मेरे को 4 लेने हैं, तो 7C4। अब जो मेरे पास बी पार्ट है, बी पार्ट में मेरे पास सारे ए हैं। तो एनसीआर की डेफिनेशन, आप हम दोबारा उस पर चलते हैं। देखो ये वहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग अलग, और यहाँ पे क्या है, सेम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप C11 लिख देंगे, इसका सीधा मतलब है आंसर इसका 1 होगा और यहाँ पे NCR नॉट एप्लीकेबल, सीधा मतलब। अब थर्ड पार्ट, यही थर्ड पार्ट है जिससे अब हम समझेंगे। अब आप लोगों का पता नहीं आंसर आ रहा होगा, 7C4 कर दीजिए। ये तो पाप है, 7C4 तो महापाप है, क्योंकि 7 हो ही नहीं सकता। दिस इज पाप, क्योंकि 7 अलग ही अलग कहाँ है, 3 तो ए सेम है और 2 बी सेम है, तो 7C4 डालना पाप है। हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे कि मुझे 4 उठाने हैं तो 4C4 कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट भी हैं। ये एक पल के लिए सही भी लगता है, लेकिन ये कम पाप है थोड़ा, मतलब ठीक है, पाप है, ये भी पाप है। अब कुछ महानुभाव होंगे जिनका आंसर उच्च लेवल का आ रहा होगा, जो कि आ रहा होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये पाप टू द पावर पाप है, ये समझ लीजिए। ये लिखना और ये लिखना, ये दोनों पाप टू द पावर पाप है। अब आइए इसको समझते हैं। अब अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास सारे जो टर्म्स या फिर जो यूनिट्स दिए होते हैं, अगर ऑल डिस्टिंक्ट हुए तो उसमें हम NCR लगा देंगे। मस्त जिंदगी चल रही है, NCR लगा दिया, ठीक है। अगर हमारे पास सारे
सेम आ गए। मस्त जिंदगी चलेगी, 1 लिख दिया, और NCR बोल देंगे नॉट एप्लीकेबल। NCR इज NA। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और NCR इज नॉट एप्लीकेबल। अब आता है एक मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में हमारे पास क्या आता है? सम आइडेंटिकल। इसको मुझे एक दूसरे पेन से लिखने दीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मिक्सचर सम आइडेंटिकल प्लस सम डिस्टिंक्ट, ये होता है मिक्सचर का कॉम्पोजिशन। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहीं से हमारा जो उस सेकंड पार्ट, उस डेफिनेशन का समझने का सफ़र शुरू होता है। अब आइए देखते हैं। अब मेरे पास सपोज हर चीज़ क्वेश्चन से डील होने वाली है यहाँ पे, हर चीज़। सपोज मेरे पास है 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स। फाइंड the number of ways to pick 4 people such that at least one girl is surely picked। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और यहाँ आप गलती भी करेंगे, उस गलती से आप सीखेंगे भी। ठीक है, अब इसके मैं बताना चाहूँगा, इसके 3 तरीके हैं। आइए उन तरीकों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे M1। जिसमें भी कहेंगे, और सच बता रहा हूँ, सब में लॉजिक है, लॉजिक सब में प्रेजेंट है कि फर्स्टली pick a girl and then three left, and then 3 left, and they can be boys or girls, no matter। तो यहाँ आंसर क्या आएगा कि चार में से कोई एक लड़की ले लो, और फिर जो बचे हुए 7 हैं उनमें से कोई 3 ले लो। ये इसका आंसर। मेथड 2, देखते हैं। मेथड 2 से क्या सीख सकते हैं? ठीक है, मेथड 2 में कुछ हम इस पहले इस टाइप का बना लेते हैं। 1 2 3 एंड लास्ट 4। ये थोड़ा नैरो हो गया। ठीक है, छोड़ लेते हैं, थोड़ा सा जूम, लिखने में होगी आसानी।
तो पहले आ सकता है 1 गर्ल एंड 3 बॉयज़, 1 गर्ल 3 बॉयज़। तो इसमें कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 1 और 4 में से 3। सिमिलरली 2 गर्ल्स 2 बॉयज़, 4C2 4C2, 3G1B, तो यानी 4C3 एंड 4C1 एंड 4G एंड 0B। तो यहाँ पे आ जाएगा 4C4 4C4 एंड 4C0। ठीक है, और ये केसेस हैं, केस में ले लीजिए। और फाइनल इनका प्रोडक्ट जो होगा, मतलब जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ऐड होगा। ऐड क्यों होगा, क्योंकि ये है हमारा केस 1, केसेस में बात हो रही है, स्टेजेस में नहीं। केस 1, ये है केस 2, ये है केस 3, ये है केस 4। ठीक है, ये हो जाएगा ऐड। अब देखते हैं मेथड 3। मेथड 3 है सबसे सरल। मेथड 3 कुछ ऐसा होगा कि टोटल माइनस गलत, और गलत क्या हो सकता है, टेक ऑल बॉयज। क्योंकि हमें यहाँ स्पेसिफाई किया गया था कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 गर्ल, और हमने गलती कर दी, सारे बॉयज़ ले लिए। तो टोटल हम कितने ले सकते हैं, 8 लोग हैं, 4 ले लीजिए। और गलती हम क्या करेंगे, चारों में से चारों बॉयज़ ले लिए। ठीक है, ये हमने गलती कर दी, नो प्रॉब्लम। अब इसमें से कौन से 2 मेथड होंगे, कौन से मेथड सही होगा, ए, बी या सी। मैं आपको बता दूं कि ए रॉन्ग होगा और बी और सी की वैल्यू सेम आ जाएगी। ए आउट ऑफ दी मैच हो जाएगा। क्यों होगा समझते हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी, NCR when we apply NCR, none of the object should say that it is being used for same purpose again। और आप ऐसे कर लिख सकते हैं उसको, चांस दोबारा नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए सेम पर्पस के लिए, सेम पर्पस के लिए। अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। अब इसमें से अब मैं आपको एक केस देता हूं कि मेरे पास ABCD है, ABCD, और मैं कह रहा हूं आपको कि इसमें से 2 उठाओ, पिक
2 of them, तो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास 4, हाँ 4C2, चारों से 2 उठाए। या फिर कुछ ऐसे ही बोल रहे होंगे कि पहले 4 में से एक उठा लो, उसके बाद 3 में से एक उठा लो। सुनने में अच्छा लगता है, बात तो एक ही आ रही है, 2 लोग मिल रहे हैं मेरे को, दोनों सेम ही लगता है, ठीक है, दोनों सेम ही लगता है। पर अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो कि जब मैं फर्स्ट वाले में देख रहा हूँ, जब मैं अब इसमें से ये सही है ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि जब मैं 4C1 कर रहा हूँ, जब मैं 4C1 कर रहा हूँ यानी मैं इन चारों में से जब मैं 4C1 कर रहा हूँ, यानी कुछ ऐसे कि ABCD से जब मैं चारों में से इस एक को उठा रहा हूँ तो इन तीनों का यूज भी हो रहा है, दे आर यूज्ड, ठीक है। और फिर उसी के बाद मैं दोबारा इन तीनों का यूज कर रहा हूं उसी सेम पर्पस के लिए, ताकि मेरे पास एक दे आर अगेन फॉर यूज्ड फॉर सेम पर्पस, अगेन यूज्ड फॉर सेम पर्पस। इसको थोड़ा यहाँ इसी पेज में लिख देते हैं, यूज्ड फॉर सेम पर्पस। क्या चीज़ समझ में आई? हाँ, अगर मैं ऐसे कहता, अगर मैं कहता कि मुझे 4C1 का सपोज मुझे 4C1 की चटनी पीसनी है, आई हैव टू मेक चटनी, और मुझे 3C1 की सब्जी बनानी है, तब कोई गलती नहीं है। क्यों? इनका पर्पस अलग है, इसमें इसकी चटनी बननी है, इसमें इसकी सब्जी बननी है, दोनों का केस पर्पस अलग हो गया, ठीक है। तो पर्पस सेम नहीं होना चाहिए, बाकी वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं पर पर्पस सेम नहीं होना चाहिए। उसी अब आपको कहीं समझ में आ रहा होगा कि ये गलत क्यों था। आइए फिर पता करते हैं गलत क्यों है। अब मेरे पास थे उस क्वेश्चन में कि मेरे पास थे 4 गर्ल्स, G1, G2, G3, G4, और फिर थे 4 बॉयज, B1, B2, B3, B4 प्रीवियस क्वेश्चन में थे। और इनसे मेरा M1 का क्या आंसर आ रहा था? M1 में मेरा आंसर आ रहा था 4C1 इंटू 7C3। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी? हमें चूज करने थे 4 बच्चे, ठीक है, हमें चूज करने थे 4 बच्चे, इन आठों में से हमको 4 बच्चे चूज करने थे, जिसमें एक गर्ल होनी चाहिए थी, ठीक है। अब हमने 4C1 के लिए हमने इन G1, G2, G3, G4 का हमने यूज़ किया एक G1 निकालने के लिए, कोई बात नहीं, हमने G1, G2, G3, G4 का यूज़ किया, वी हैव यूज देम फॉर एट लीस्ट वन गर्ल। या फिर सपोज फॉर पिकनिक, या फिर आप मतलब ये समझ जाओ कि इनको हमने पहले फर्स्टली यूज्ड, फिर सेकेंड टाइम में जब 7-3 की बारी आई, जब 7-3 की बारी आई तो इसमें G2 और G3 और फिर G4 इनका सेकेंड यूज हुआ, सेकेंडली यूज सेकेंड टाइम फॉर यूज्ड सेकेंड टाइम फॉर द सेम पर्पस। और पर्पस क्या था?
बच्चों को छांटना, जिसमें से एक लड़की होनी चाहिए थी। इसमें भी इनका मोटिव क्या था, बच्चे लेना, उसमें से एक लड़की लिया इसमें। और फिर से इसमें G1 G2 G3 और B1 B2 B3 B4 इनको लिया गया, ताकि इसमें से भी कोई गर्ल क्या पता आ सकता था। तो मतलब इन G1 G2 G3 G4 का दोबारा यूज़ किया गया फॉर द सेम पर्पस। इसमें अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट अ टीम of 4 such that minimum one girl is present and she is a captain. She is the captain of the team. She is the captain of the team. अब सपोज पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक गर्ल होनी चाहिए, एक गर्ल होनी चाहिए, और बाकी कोई भी हो सकता है, गर्ल होता है, गर्ल हो सकता है, बॉय हो सकता है। तो कितने की टीम है, 4। तो मेरे पास सपोज 8 ही लोग थे, तो 7C3। अब पर्पस अलग हो गया ना, इसमें पर्पस कैसे अलग हो गया, इसमें आई हैव टू, द पर्पस इज कैप्टन, द पर्पस इज कैप्टनशिप, एंड हियर द पर्पस इज पिकनिक। पर्पस चेंज हो गया, यानी यहाँ पे M1 करेक्ट हो जाएगा और M2 और M3 गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर M2 और M3 कैसे सही हैं, ऐसा क्या किया उन दोनों ने, M2 M3 कैसे सही हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सिलेक्शन टेक्निक और फिर डिस्ट्रीब्यूटर टेक्निक और शफलिंग टेक्निक में आगे बात करेंगे, ठीक है। सो टिल that's it for this video. So meet you in the next one. Thank you very much.